کم از کم وہاں پہ پہنچ جائیں جو 2003 4 5 میں چلتی تھیں، وہ اب ہم آنے والے وقت میں بھی چلانا شروع کر دیں۔ اس کے علاوہ ان کو میں نے بتایا کہ کچھ کام ہم ٹھیک ہے بجٹ کے ذریعے ہوں گے، لیکن کچھ کام ہم خود کر سکتے ہیں۔ یعنی ہم نے کہا کہ نہ ٹرین جانے میں لیٹ ہوگی نہ آنے میں لیٹ ہوگی، یہ پرائرٹی میں شامل ہے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کسی کے ساتھ کمپرومائز اس پہ نہیں کیا جائے گا، سختی کے ساتھ اس پہ عمل درآمد پورے پاکستان میں ہم کروا رہے ہیں۔ انشاءاللہ وہ کوئٹہ پہ بھی ہوگا۔ صفائی ہے، صفائی بھی ہم اپنے طرف سے کر سکتے ہیں، صفائی میں بھی کوئی اتنا پیسے نہیں لگتے یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے، جن پہ لگیں گے اس پہ ہم زور نہیں لگائیں گے، وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ خود کریں گے۔ تو یہ اقدامات ریلوے کے حوالے سے، باقی کیا کیا اقدامات کر رہے ہیں وہ لمبی ایک فہرست ہے۔ ہم اپنی پراپرٹیز بھی جو انکروچ ہیں وہ بھی ہم نے کہہ دی ہے کہ ان کو بھی ہم، وہ جس کے پاس ہے، جس ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے، وہ بھی میں نے کہا ہے کہ اس کو بھی ہم ٹیک اپ کر رہے ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ ہم انشاءاللہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہے وہ بھی واپس لیں گے۔ اپنی جو پرائم جگہیں ہیں اسی طرح ان کے اوپر بھی ہم ملٹی پرپز پوری پاکستان کے اندر، کراچی، لاہور، کوئٹہ، پشاور کے اندر زمین ہم بیچ نہیں سکتے، لیکن جے وی کے اوپر انشاءاللہ بڑی بڑی ہم پلاننگ کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن ہمارے 14 سکول ہیں جو ہمارے ریلوے کے امپلائز کے بچے پڑھتے ہیں، وہ تقریباً ان کی تعداد ہے کچھ تقریباً 4800۔ ہم 4800 بچوں کی کوالٹی ایجوکیشن کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کی کوالٹی ایجوکیشن کی طرف جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، پرائیویٹ سیکٹر کو شامل کر کے۔ اسی طرح ہمارے 8 بڑے ہاسپٹل ہیں، پرائم جگہوں پہ ہیں، کوئٹہ سے لے کے لاہور، لاہور سے لے کے کراچی، ہر جگہ کے اوپر وہ 8 کے 8 ہم اپنے امپلائز کے لیے، اب وہ نہیں ہے کہ اس کے پاس کسی کے پاس انجیکشن نہیں کسی ہاسپٹل میں، کسی جگہ انڈور کے لیے پیشنٹ کو داخل ایڈمٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس جگہ نہیں ہے یا صاف نہیں ہے، ان کو بھی ہم پرائیویٹ سیکٹر کی مدد سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم وہ فیسلٹی اپنے امپلائز کو دینے جا رہے ہیں جو امیر ترین لوگ جو ہیں پرائیویٹ ہاسپٹلز میں جا کے لیتے ہیں، وہ ہم انشاءاللہ، یہ وہ کام ہے جس پہ ہمیں کوئی اتنا وقت نہیں لگے گا۔ ML1 کب بنے گی، 2 کب بنے گی، 3 کب بنے گی، اس کی پلاننگ ہم آپ کو 5 اور 6 مہینے کے اندر اندر دیں گے۔ لیکن جو اس وقت ایگزسٹ کرتا ہمارا کارگو ٹرین ہے کراچی سے چلنے والی، اس پہ کارگو کا ہمارا، اب میں نے ایک مثال دی CEO صاحب کو کہ 3000 کنٹینر نکلتا ہے کراچی پورٹ سے اور ہم وہاں سے 200 اٹھاتے ہیں، باقی سارے وہ ٹرالوں پہ اور ٹرکس پہ جاتا ہے، تو وہ ہماری ٹرین پہ کیوں نہ آئے، تو اس سے ہم کمائی کیوں نہ۔ لیکن جو ہماری پیسنجر ٹرین ہے جس کو ہم نے پرائیویٹائز بھی کیا ہے، اس نے 2023 میں 39 ارب کمایا، 2024 میں 47 ارب کمایا، اور اب ہمارے آنے کے بعد اور جو ٹارگٹ ہم نے دیا ہے ہماری ٹیم CEO صاحب کی نگرانی میں اور چیئرمین صاحب کی سرپرستی میں، وہ ہم نے دیا 55 ارب روپے کا۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم پیسنجر ٹرین میں اس طرح ریونیو کما رہے ہیں تو دنیا پوری چلتی ہے کارگو کے اوپر، فریٹ ٹرین کے اوپر، اور پیسنجر ٹرین کو سبسیڈائز کرتی ہے، تو یہاں حالت ہماری یہ ہے کہ ہم 4% اٹھاتے ہیں پورے پاکستان کا کارگو کا۔ تو انشاءاللہ اس پہ بھی ہم بغیر ML1 بنے، 2 3 بنے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بھی اضافہ کریں گے۔ وہ بھی ٹارگٹ ہم نے دے دی ہے، اس ٹارگٹ کو بھی ہم 2 3 دنوں میں پبلش کریں گے تاکہ وہ ہماری بھی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی رہے۔ یہ میری آپ کے سامنے اور پوری قوم کے سامنے چند گزارشات تھیں، ایک ہماری جعفر ایکسپریس کے حوالے سے، ایک پورے ریلوے کے سیٹ اپ کے حوالے سے، اس کو ہم کیا کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد جو بھی کوئی کوشچن ہے آپ کی طرف سے تو میں حاضر ہوں۔ اس کے علاوہ ایک بات رہ گئی، پھر میں جو ہمارے کوئٹہ سے تعلق رکھنے والے ہمارے میکینک تھے نا جو پولیس کے، نہیں ادھر والے جو تھے ابھی، نہیں پولیس کا سپاہی وہ ادھر مانسیرا کے تھے، ادھر کا تھا، وہ ادھر کا تھا، میکینک جو تھا وہ ہمارا مانسیرا۔ جو ہمارا پولیس کے اپنا جوان شہید ہوا ہے نا جی یہاں سے جس کا تعلق تھا، اس کی کمپنسیشن جو ہے وہ آج ہم 52 لاکھ آج ان کے والے، یہ قیمت میں پھر بار بار کہتا ہوں، یہ پیسے جو ہیں وہ قیمت نہیں ہے کسی کی جان کی، لیکن یہ ایک چھوٹی سی ٹوکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس فیملی کے لیے کہ ہم اس کو اکنالج بھی کر رہے ہیں اور پوری قوم ان کی شہادت کو اکنالج کر رہی ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں۔ وہ بھی آج آپ کے سامنے ہم ہینڈ اوور کر دیں گے تاکہ یہ وہ ڈپارٹمنٹ والا جو کام لمبے ہوتے ہیں کہ اناؤنس ہو جاتی ہے کمپنسیشن لیکن دی نہیں جاتی، یہاں بھی کئی حادثات ہوئے ہوں گے جہاں پہ میرا خیال ہے اناؤنس ہوئی ہوگی اور آج تک نہیں اس کی کمپنسیشن دی گئی۔ آپ کوئی کوشچن کر لیں۔ اچھا سر، آپ نے بتایا کہ سیکورٹی کے جو ہے معاملات ہیں ان میں دیکھ رہے ہیں، جیسے یہ
पहला वाकया नहीं था, ये बड़ा वाकया जरूर था, इससे पहले भी वाकया हुए, क्योंकि बलूचिस्तान में जो ट्रैक है ये कई किलोमीटर तक है और जो है उन इलाकों में पहाड़ी रास्तों के दरमियान से गुजरती है। तो इसको कैसे आप लोग जो है बनाए? वज़ीर आला बलूचिस्तान ने भी इस बारे में खदशा जाहिर किया है कि ये तमाम सिक्योरिटी फराहम करना मुमकिन नहीं है। जामा प्लान क्या होगा, वो कहीं से भी आप उड़ा देते, जैसे पहले ट्रैक उड़ाते रहे, रेलवे ट्रैक पर जो हमला करते रहे। दूसरा आपने ये बताया कि जो हॉस्पिटल फाल करेंगे, मर्ज हॉस्पिटल से लोग जो है काफ़ी मुस्तफीद होते हैं, वो बंद है मुकम्मल, उससे कब फाल करेंगे? और इसका तमाम जो हॉस्पिटल्स है, ये जो रेलवे के जो तमाम है, जो आवाम के लिए फलाह के और बहबूद के लिए जो इदारे को तमाम जो है फाल है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है और मैंने तो खुद उसको एडमिट करके तो बात शुरू की। पहली बात यह कि ये गैर एलानिया दुश्मन की तरफ से जंग है और जो सिर्फ बलूचिस्तान तक महदूद नहीं है, वो पूरे पाकिस्तान में, जिसका मैंने आपको बता दिया। लेकिन जहाँ तक ये कहना कि ये मुमकिन नहीं है, सिक्योरिटी देना मुमकिन नहीं है, मेरा इससे इत्तेफाक नहीं है। हो सकता है उन्होंने किसी और पैराए में बात की हो। अगर ये मुमकिन नहीं है तो फिर हम लोगों को दुश्मन के रहमो करम पे छोड़ दें या दहशतगर्दों के रहमो करम पे छोड़ दें, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं पूरी ब्रीफिंग प्रेजेंटेशन से अभी गुजर के आया हूँ। इंशाल्लाह ताला हम अपने रेलवे के जितने पैसेंजर हैं, जो हमारी जिम्मेदारी है, जो हम ट्रेन चलाने जा रहे हैं, ट्रैक से लेके पैसेंजर ट्रेन को मंजिल मकसूद तक पहुँचाने तक, हमने फुल प्रूफ इंशाल्लाह ताला सिक्योरिटी अपने लोगों को फराहम करनी है और इसमें कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है, वो हम फराहम करके आपको दिखाएंगे। दूसरा, आपने जो हॉस्पिटल्स का जिक्र किया है, मच वाला, ये मुझे बता देंगे अब मच बंद है या दूसरे चल रहे हैं? ये सब को हम इंशाल्लाह ताला अपलिफ्ट करेंगे। हमने 6 महीने मांगे हैं, 6 महीने हमारे मुंह से निकला है। हम इंशाल्लाह ताला स्कूलों को भी और इन हॉस्पिटल्स को भी उसी तरह, जिस तरह हमने पैसेंजर ट्रेन के अंदर अपने कामयाबी हासिल की, इसी तरह हम प्राइवेट सेक्टर में देखें ना, अगर स्कूल प्राइवेट में करते हैं, किसी को देते हैं, तो हमारा बेंचमार्क है कि वो 5,000 बच्चा हमारा उसी तरह पड़ेगा। और अगर वो 1,500 2,000 उधर दे रहा है इस वक्त, तो वो उधर भी उतने ही पैसे देगा। दूसरा, वो लेगा वो क्वालिटी एजुकेशन। आज वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं ले रहा। अगर मैं नाम नहीं लेता क्योंकि आपका मीडिया है, किसी स्कूल का भी, लेकिन जो अच्छे स्कूल हैं वो अगर आके अडॉप्ट करते हैं, कराची का स्कूल, कोयटा का स्कूल, लाहौर का स्कूल, तो आप उन बच्चों की क्वालिटी, एजुकेशन की क्वालिटी देखें ना, यहाँ से यहाँ चली जाएगी। तो ये इसमें तो कोई इतनी बड़ी हमारी साइंस नहीं लगती, कोई पैसा नहीं लगता कि हम कहाँ पहुँच जाएंगे। तो इसी तरह जो हॉस्पिटल का आपने सवाल किया है, उसका भी यही है कि इंशाल्लाह इंडोर भी और आउटडोर भी वो हम आपको दिखाएंगे कि प्राइवेट हॉस्पिटल से अच्छा हम रन करके दिखाएंगे इन हॉस्पिटल। 4 साल से बड़े स्कैनर्स मांगे हुए कोयटा के लिए, 3 स्कैनर्स जो अभी तक उन्हें मिले। इसी तरह जो इंजन्स की सूरत हाल है, उसमें भी यहाँ पे बलूचिस्तान की काफ़ी मुश्किलात हैं। और जो रेलवे के सर एम्प्लॉयज़ हैं, इनकी सैलरीज का क्या मैकेनिज़्म है, क्योंकि ये भी काफ़ी इनको मुश्किलात है। देखिए, पहली बात तो ये है कि स्कैनर सिर्फ कोयटा में नहीं, मैं तो एडमिट वो बात करता हूँ सबके सामने। अच्छी बात को भी बता दी है, जो हमारे पास नहीं है तो वो मैं कैसे छुपा सकता हूँ आपसे, या किसी से कैसे छुपा सकता। स्कैनर कोयटा में भी नहीं है, पिंडी में भी नहीं है, स्कैनर लाहौर में भी नहीं है, स्कैनर कराची में भी नहीं है। अगर कहीं है तो ख़राब है। इन सब का हमने जिसे कहते हैं पैकेज भी बनाया है। अभी कोयटा स्टेशन के हवाले से हमने एस्टीमेट बना ली है, सीसीटीवी कैमरा से लेके, इसकी फेंस से लेके, क्योंकि आपको देखा होगा बहुत सारी जगहों के ऊपर दीवार है ही नहीं। उन सारों का एस्टीमेट बना के, ये गवर्नमेंट की सतह पे नहीं, हो सकता है कि इसको हम सेल्फ फाइनेंस की बुनियाद के ऊपर जल्द शुरू कर दें, ईद के फ़ौरन बाद शुरू कर दें। इसी तरह पूरा पैकेज बनाएंगे पूरे ट्रैक ML1 का। इन सारों को अपलिफ्ट होने की ज़रूरत है। कहीं सीसीटीवी कैमराज नहीं है, अगर हैं भी हैं तो बराए नाम है। तो इसलिए आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है, वैलिड है, लेकिन इन सब को हम एड्रेस करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। जिस तरह IG साहब को अपने 500 बंदों को ट्रेंड करके अपनी जगह पे लाने के लिए कम से कम 6 माह चाहिए। ये तो नहीं हो सकता कि आप रिक्रूट कर रहे हैं किसी बंदे को और उसको ना कोई ट्रेनिंग है, ना कोई उसको वेपन की ट्रेनिंग है, ना उसको कोई इंटेलिजेंस के बारे में उसको कोई इल्म है, ना उसको दुश्मन के वार के बारे में कोई इल्म है, तो उसको लाके किसी जगह खड़ा कर दिया जाए। तो इसलिए तो फिर प्राइवेट सेक्टर से आप वही पता बंदा जो जैसे बैंक के बाहर खड़े होते हैं ऐसे नहीं ला सकते। उसके लिए टाइम है। लेकिन हम जो लोग हमारे पास किसी और जगह मौजूद है, पंजाब के हिस्से में, सिंध के हिस्से में, वो IG साहब ने और हमने फैसला किया है कि हम क्रिटिकल एरिया जो हमारे बलूचिस्तान के हैं, अपनी फोर्स को वहाँ से विड्रॉ करके इधर लेके आएंगे। 6 महीने में 2 बड़े वाकयात हो गए हैं। रेलवे ने अपनी इंटरनल स्क्रूटनी के लिए अब तक क्या किया है? क्या आपके अपने लोग इसकी सहूलतकारी में मुलविस थे, क्योंकि बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक होती है? आपने फ्रेट ट्रेन की
की बात की, यहाँ से तफ्तान तक जो ट्रैक है वो अक्सर और बेशतर हम देखते हैं उससे या तो पटरी से ट्रेन उतर जाती है या वो रेत में धंस जाता है और वो कई कई दिन बंद रहता है, उसके लिए क्या करेंगे? और जो बलूचिस्तान से ट्रेनों की आपने बात की, दो इसके कर लिए क्या लेना। टाइम फ्रेम है? अब ये ट्रेनें बहाल करने का टाइम फ्रेम एक एक करेंगे ना तो वो तीन तीन इकट्ठे फिर वो मुश्किल हो जाता है। पहली बात तो ये कि जो आपने बात की कि आपके लोग कोई शामिल नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान रेलवे का कोई शख्स जो है कराची से लेके कोयटे तक आज तक किसी इंसिडेंट में शामिल नहीं रहा। लेकिन जो लोग शामिल रहे हैं वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि फैसिलिटेटर कौन होता है, कौन मोटरसाइकिल देता है, कौन घर देता है, कौन घर से निकालता है, कौन ट्रेनिंग देता है, कहाँ किस घर से निकलता है, किस मोहल्ले से निकलता है, ये तो आप ज़ुबान ज़द आम है सबको। वो फैसिलिटेटर का जिक्र मैं कर चुका हूँ, वो हर रंग और हर नस्ल और हर कौम से उसका ताल्लुक़ है, उसमें कोई। और फिर कहते हैं कि दहशत गर्दी की तो कोई ना मज़हब होता है, ना उसकी कोई कौम होती है, ना ही उसकी कोई नस्ल होती है, ना ही कोई उसका रंग होता है। तो इसलिए इसमें तो आप मैं समझता हूँ कि हमारे लोगों ने जिस मेहनत के साथ, एक तो शहादतों उन्होंने शहादतें हासिल की हैं, इसमें 2 रेलवे के और बाकी ज़ख्मी भी हुए हैं। और जिस तरह बाकी लोगों की बात आपने की, ट्रैक की बात की, आपने फ्रेट की बात की, उस पर मेरा बड़ा फोकस है, डे 1 से फोकस है। वो सिर्फ आपके कोयटे की बात नहीं मैं कर रहा, हमारे पास पिंडी के ट्रेडर्स आए, हमारे पास मुल्तान के आए, फैसलाबाद वाले आए, इवन कोयटा के आप आ रहे हैं, जो एक प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग थी उसमें बैठे हुए थे। उन्होंने कहा जी कि हम आपकी फ्रेट ट्रेन इस्तेमाल करना चाहते हैं, कार्गो इस्तेमाल करना चाहते हैं, सस्ता है। इन सारी चीज़ों के ऊपर हम गौर व फिक्र कर रहे हैं अभी आपके आने से पहले। और जो बात अभी आपने पैसेंजर ट्रेन की, वो पुरानी ट्रेनों की रेस्टोरेशन की बात की है, वो सीओ साहब को बता दी है, इन्होंने ये भी लिख लिया है, इन्होंने फ्रेट वाला भी लिख लिया है। ये टाइम फ्रेम जाके अपने हेडक्वार्टर में बना के मेरे से ये वो बात करते हैं पिछले 25 दिनों में, जिसको ये पूरा कर देते हैं। ये मैं इनके मुंह पे कह रहा हूँ। तो अब मुझे उम्मीद है कि जो मुझे एक टाइम फ्रेम देंगे, मैं टाइम फ्रेम के साथ चलता हूँ। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, टाइम फ्रेम के बगैर तो सिर्फ प्रेजेंटेशन लेना, उठ के चले जाना और ये कैमरों के सामने बात करना, ये हम तकरीबन 30 साल से कर रहे हैं। अब कोई शौक़ नहीं है, अब ये है कि ज़िम्मेदारी है। ज़िम्मेदारी को हम कैसे निभाते हैं एज ए पाकिस्तानी, और जो ज़िम्मेदारी हमें मिली है इस पाकिस्तान की तरफ से, वो किस हद तक सच्चाई की बुनियाद के ऊपर। मैं ये नहीं करूँगा कि अपना ये जो जाफ़र एक्सप्रेस का नाम सुबह मैं कोई और नाम लिख के तो उसको तब्दील करके मैं उसकी इनाग्रेशन करते हुए आप मुझे नहीं देखेंगे। ना ही मैं किसी को खुश करने के लिए, हाँ, नाम उनके रखे जाएंगे जिन्होंने इस मुल्क और कौम की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया है, जिन्होंने इस मुल्क को बनाया है और आज इस मुल्क में अपनी जानें दे रहे हैं। हम उन लोगों को से मंसूब करेंगे आने वाली ट्रेनों को भी, और जो ट्रेनें जिस नाम से चल रही हैं वो बड़े नाम हैं, छोटे नाम नहीं हैं। उन नामों को इंशाल्लाह हम जिंदा और ताबिंदा रखेंगे। रेलवे के जो कम्युनिकेशन सिस्टम है तकरीबन 1985 का है। अब दुनिया कहाँ से कहाँ पर 1985 में कम्युनिकेशन पे चले, कोई हादसा हो जाता है कई घंटों बाद यहाँ इतला पहुँचती है। इसको आप स्टोर करने के लिए आप क्या करें? नेक्स्ट ये कि जो अभी हादसा हुआ जो दहशतगर्दी, इसमें रेलवे को कितना नुकसान होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो आप रिस्टोर करें, रिस्टोर तो उसको किया जाता है ना जो पहले से मौजूद हो। आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। हम रेलवे को हर सूरत, ये जितना आप बता रहे हैं आईटी के हवाले से हमारा पूरा एक प्लान है जो हम ईद के बाद इंशाल्लाह बैठ के इसके अंदर सीसीटीवी कैमरा से लेके, वाईफाई से लेके, इसकी सर्वेलेंस से लेके हर चीज़ जो है इंशाल्लाह हम करने जा रहे हैं। अभी तो आप जब 117 पे जाए ना तो वहाँ पे आपको रिस्पांस नहीं मिलता। अब दुनिया बड़ी, जैसे आपने कहा, बहुत आगे चली गई है। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जब 117 पे जाए ना तो वो आपसे पूछे उर्दू में बात करनी है कि अंग्रेज़ी में बात करनी है, ठीक है, तो फौरी रिस्पांस दे आपको। और इंक्वायरी में जाना है या किसी और चीज़ में आपने कार्गो के हवाले से किया, वो सारा सिस्टम हम इंशाल्लाह ताला, इसके लिए हमें कोई इतना बड़ा टाइम नहीं लगेगा। कोई बात नहीं, मैं बैठा हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं है। कोई ऑडिट किया है कि सिक्योरिटी गफलत कहाँ थी? कोई बीडी ट्रैक जो है ना वो ट्रैक की बीडी हुई थी और यहाँ पे आप लाखों करोड़ रुपए देती हैं, एफसी को देते हैं, उनकी चेक पोस्टें हैं, उन्होंने बीडी क्लियरेंस की कि नहीं की थी? गफलत कहाँ पे हुई है? इतना बड़ा वाकया हुआ है, इसमें कोई बात नहीं हुई। देखिए, आप ये समझते हैं कि जो आए थे वो बड़े बच्चे थे या बड़ा सुकून से उन्होंने आके ये सारा कुछ, और उनको पता कुछ नहीं था। उन्होंने पूरी रैकी की होगी, पूरी ट्रेनिंग लेके आए, पूरा उन्होंने अब एक जदीद किस्म का काम उन्होंने किया होगा,
कोई आईडी ऐसी लगाई होगी जो मिलती जुलती होगी आपके, मैं नाम नहीं बताना चाहता, वो आपके वो जो पटरी का इक्विपमेंट है उससे मिलती जुलती होगी, ठीक है। वो सारी चीज़ें उसने करके, और उसके पीछे कौन कौन लोग बैठे हैं, सेटेलाइट के ज़रिए किस मुल्क के अंदर किन किन लोगों से उनका रब्ता था। अब वो उन्होंने सिर्फ उनको बंदूक दे के नहीं भेजा, उन्हें पूरी एक प्लानिंग के साथ भेजा है। और मैंने फिर आपको कहा है कि ये एक गैर एलानिया जंग है। अगर दुश्मन ने हमारे साथ लड़ना है ना, जो भी दुश्मन है हमारे इर्द गिर्द, वो जिसने लड़ना है एलानिया हमारे साथ लड़े आके, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन जहाँ पे आपकी अपनी आबादी मौजूद हो, अपने लोग मौजूद हों, और आपको मालूम भी हो कि इस घर में फ़लाँ जगह के ऊपर फ़लाँ फैसिलिटेटर भी है, तो आप उसमें बड़ी एहतियात करते हैं। आपने देखा है जब वो पहुँच भी गए ट्रेन के पास, तो उन्होंने उस वक्त का इंतज़ार किया कि कोई ऐसा बड़ा हादसा ना हो जाए। उस हिकमत अमली को अपनाते हुए उन्होंने वहाँ से रेस्क्यू किया। तो इसलिए इस गैर एलानिया जंग में ना हम FC की वो देखें, सबसे पहले शहादत किसने दी है, वो पिकट के ऊपर मौजूद FC के हमारे जवान थे जिन्होंने अपनी शहादत, और मारने वाला वैसे ही जो है वो अपर हैंड होता है। तो ये इस सूरत हाल में ना मैं इसको सिक्योरिटी लैब्स कहता हूँ सर, ना इसको मैं कहता हूँ कि मैं उन शहादतों को तो हम गिन ही नहीं रहे जो 12,000 शहादतें हो चुकी हैं। कोई गिनता है 20,000 डिसेबल हो चुके हैं, वो भी तो किसी के माँ का बेटा होगा, किसी हमारी बहन का सुहाग होगा। अभी मैं छोटी छोटी वीडियोस अगर आप देखें तो लोगों के 28 दिन 30 दिन शादी को हुए हैं, तो वो भी तो अपने डेड बॉडीज़ उनके घरों में गए हैं। 10 दिन पहले, 20 दिन पहले, 1 महीना पहले वहाँ शादियाने बजाए जा रहे थे। तो इस वक्त हमें इस तरफ जाने की बजाय, कि गफलत में जाने की बजाय, हमें ये पैगाम देना है सब ने मिल के, वो इंटेलेक्चुअल्स हो, पॉलिटिशियन हो। मैं तो बड़े क्लियर और क्रिस्टल हूँ इस मामले में कि हमने दुश्मन का मुकाबला इकट्ठे होकर करना है। ये दहशतगर्द के बारे में अगर आप कोई नरम रवैया अपनाएंगे ना, दहशतगर्द से बातचीत नहीं हो सकती, किसी दहशतगर्द से बातचीत नहीं हो सकती। जो पाकिस्तान की फेडरेशन को मानता है, जान हाजिर है उसके लिए एक दफ़ा मुज़ाकरात नहीं, 10,000 दफ़ा हमें मुज़ाकरात करने चाहिए। और हमें से जो मुज़ाकरात नहीं करता वो पाकिस्तान का हामी नहीं है, पाकिस्तान का हमदर्द नहीं है। और जो पाकिस्तान की फेडरेशन को नहीं मानता, मैं समझता हूँ कि ये भी फिर कोई, हम उसको नहीं मानते, सीधी सिंपल सी बात है। अब्बासी साहब, क्या लोगों का एतमाद बहाल करने के लिए आप या आपका कोई ऑफिसर या CO साहब सफ़र करेंगे सर ट्रेन? देखें, बिल्कुल ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं, मैं सफ़र करने के लिए तैयार हूँ, मैं आऊँगा, सफ़र करूँगा। मुझे तो अब भी मैं जाने के लिए तैयार हूँ। मेरी कोई कमिटमेंट ना होती तो मैं सुबह भी रुक जाता। मेरी इंपॉर्टेंट किस्म की मीटिंग, मैं यहाँ आपके पास आके बैठा हूँ, मुझे यहाँ से आप साथ के लेके चले जाएं बाहर, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। तो मैं यहाँ भी आपको कहता हूँ कि आएँ, जितने मर्जी घंटे बैठें, मैं चौथी मीटिंग कर रहा हूँ जी। देखिए ना, हाँ मैं बताता हूँ, देखें अगर तो हमने सिक्योरिटी यहाँ पे डिस्क्लोज कर दी तो वो सिक्योरिटी नहीं रहेगी। लेकिन जो मैंने प्रेजेंटेशंस ली हैं, जो IG साहब ने, हमने सब ने मिल बैठ के जो प्लान किया है, उससे हमें इंशाल्लाह ताला, हमें अल्लाह ताला के यहाँ उम्मीद है कि हम बेहतर सिक्योरिटी, पहले से बेहतर सिक्योरिटी नहीं, उससे भी बेहतर सिक्योरिटी फराहम करेंगे। लोगों की जानों को इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला जाने बचाने वाला भी है और हिफाजत करने वाला भी है। वो इंशाल्लाह आपको नज़र आएगा कि हमारी ट्रेन्स जो हैं बाहिफाजत मंजिल मकसूद तक लोगों को पहुँचाएँगी। और वक्तन फ़ौक्तन हमारे लोग भी, हम भी उस ट्रेन में सफ़र करके ये बताएंगे कि हाँ ये महफूज सफ़र है। जिस तरह हमने ये ज़ाहिर साबित किया है कि अगर 2 दिन चलने वाली, अगर हम इतने डरे होते हैं, अगर इतने सिक्योरिटी के फ्लॉज होते हैं हमारे पास, तो हम 2 दिन वाली ट्रेन को 7 दिन में क्यों कन्वर्ट करते हैं? फिर हम ये भी बहाना बना सकते थे ईद के बाद हम शुरू करेंगे। हाँ, जो नुकसान वाली बात मेरे भाई ने की, अभी आप देखें इससे बढ़ के और बात, अभी मैं उस जाफर ट्रेन का इंस्पेक्शन भी करके आया हूँ, या आप मुआयना कह सकते हैं इंस्पेक्शन, मैं कोई टेक्निकल आदमी नहीं हूँ। अब देखें जहाँ जहाँ पे उसको लगी थी, बुलेट्स लगी थी, जहाँ डैमेज हुआ था, हमारी जाफर वो बेहतरीन तरीके से, उसी तरीके से, हालांकि ये 1964 और 70 और 80 की कोचेज़ हैं जिनको हम रिप्लेस करने जा रहे हैं, जिसमें 230 के करीब हमारे पास इंशाल्लाह ताला 46 पहुंच चुकी हैं। बाकी हम अपनी कैरिज फैक्ट्री में बना रहे हैं, लेटेस्ट हैं, 160 180 की स्पीड की हैं, जो हम इंशाल्लाह ताला 27 की दिसंबर तक, यानी हर महीने में 4-4 5-5 3-3 मिलती जाएंगी। तो हम इंशाल्लाह ताला
बाकी 186 जो है हम अल्लाह ताला ने चाहे तो 2027 की जून तक मुकम्मल कर लेंगे। फिर हम उन लेटेस्ट कोचेस के साथ अपने लोगों को इधर एक मंजिल से दूसरी मंजिल लेके जाएंगे। मिनिस्टर साहब, रेलवे के मुलाजमीन का जो है तनख्वाहों का एक शदीद मसला चल रहा है, इसको हल करने के लिए क्या टाइम फ्रेम दोगे? इस वक्त जी बोले। दूसरे बलूचिस्तान के लोगों की डिमांड है कि नए कोचेस से वो भी मुस्तफीद जी होना जी बिल्कुल चाहते हैं। बिल्कुल क्योंकि आज आपने कोच की जी हालत जी देखी थी। नहीं मैंने देख ली और मैंने उस आपके सवाल से पहले जवाब भी दे दिया। पहली बात ये है कि आज की डेट तक कोई पेंडिंग है जी? कोई पेंडिंग नहीं है, ठीक है, कोई सैलरी पेंडिंग नहीं है, सब दे दी गई है और इंशाल्लाह ताला आगे भी। और दूसरी बात रहेगी कोचेस की, वो तो मैंने आपको पहले बता दी है कि हम जून उन कोचेस को हमारे पास आएंगी और हम प्रायोरिटी के ऊपर बलूचिस्तान को रखेंगे। वहाँ पे ऐलान किया था कि ट्रेन को जो है गोदान में ड्रोन के जरिए उसकी निगरानी हाँ। की जाएगी। अगर निगरानी की जाएगी तो इस पर खर्चा कितना आएगा? हाँ, वो अभी हमने प्लान करना है। इतने देखे ना, ये तो हमने निकाला है, जैसे आईटी की, सीसीटीवी कैमरास की, ये सारा हमारा जो है आने वाले बजट के अंदर हम सारा लेके जा रहे हैं। काम शुरू हो गया है। जैसे आईजी साहब ने अपनी सेफ्टी के हवाले से, अपनी इसकी पुलिस की कैपेसिटी को अपलिफ्ट करने के हवाले से, इक्विपमेंट के हवाले से, फिर वेपन्स के हवाले से ये सारी चीज़ें बनाई हैं। तो वो उसके लिए भी टाइम चाहिए।